ویلکم بیک۔ بلٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وزیر اعظم نے کہا پوری قوم بہادر مسلح افواج کے ساتھ ہے، قوم کی حمایت مسلح افواج کی طاقت سے سلامتی، وقار اور عزت برقرار رکھنے کو تیار ہے۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم کو سیکورٹی صورتحال اور درپیش خطرات پر بریفنگ دی گئی۔ مشرقی سرحد پر روایتی خطروں سے نمٹنے کی تیاریوں سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء نے روایتی خطروں سے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ کہا ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی روکیں گے، فیصلہ کن جواب دیں گے۔ قوم کی حمایت سے تمام ریاستی ادارے ملک کی سلامتی اور وقار کے تحفظ کے لیے مکمل تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے قومی مفادات کے تحفظ اور سلامتی کے فیصلوں میں ISI کے کردار کی تعریف کی۔ نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور سروسز چیفز بھی موجود تھے۔ بھارت فیصلہ کر لے، مذاکرات کا راستہ چننا ہے یا تباہی کا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان کا پہلگام واقعے میں کوئی ہاتھ نہیں۔ اگر بھارت پاگل پن کا مظاہرہ کرنے پر تلا ہے تو جان لے ہم جھکنے والے نہیں۔ بھارت نے دہشت گردی کو خارجہ پالیسی کا حصہ بنا رکھا ہے۔ سنتاس معاہدے کی معطلی انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ بھارت نے حماقت کی تو پاک فوج سخت جواب دے گی۔ Let India decide. Will it be dialogue or destruction? India must abandon terrorism as a tool of its foreign policy. Why would a true victim of terrorism shy away from accountability? Unless they are worried that the world will see that the real blame for the bloodshed in Kashmir lies in Delhi and not in Islamabad. Pakistan had no hand in that crime. India's suspension of the Indus Water Treaty is not a punishment for Pakistan, it's a crime against humanity. What madness is this? The people of Pakistan are not made to kneel. Let no one mistake our restraint for weakness. Pakistan armed forces are vigilant, resolute, and prepared. In order to free this region from terror, India and Pakistan must work together. مودی کو پہلگام حملے کا علم تھا، بھارتی سیاستدانوں کا دعویٰ۔ کانگریس کے صدر ملکارجن نے کہا کہ حملے سے 3 دن پہلے مودی کے پاس خفیہ اطلاع تھی۔ مودی نے اس پر مقبوضہ کشمیر کا دورہ ملتوی کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے آخری گورنر کا بھی کہنا ہے کہ ان کے پاس اطلاعات تھیں پھر بھی کچھ نہیں کیا۔ ستیہ پال ملک نے کہا مودی بہت بے شرمی سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ حملے کے 3 دن پہلے انٹیلیجنس رپورٹ مودی جی کو بھیجا تھا۔ مودی جی نے کشمیر جانے کا پروگرام کینسل کیا تھا۔ انٹیلیجنس لوگوں کو، سیکورٹی کو، پولیس کو، بارڈر فورس کو آپ نے کیوں نہیں اطلاع دیا؟ ان کے پاس انپوٹس تھے پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا، ایک سپاہی نہیں تھا۔ بہت بے شرمی کر رہے ہیں، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو تو معافی مانگنی۔ آرمی چیف نے بھارت سے واپس بھیجے گئے 2 بچوں کے علاج کی ذمہ داری اٹھا لی۔ بچے آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زیر علاج ہیں۔ بچوں کے والد شاہد احمد کا آرمی چیف سے اظہار تشکر، کہا بچوں کا علاج امید سے بڑھ کر کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر محبوب سلطان نے بتایا 9 سال کا عبداللہ اور 7 سال کی منسا کو علاج کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بریگیڈیئر ڈاکٹر خرم اختر کہتے ہیں علاج بین الاقوامی اصولوں اور معیار کے عین مطابق کریں گے۔ اور غیر اخلاقی سلوک کیا گیا۔ آرمی چیف کا شکر گزار ہوں۔ عبداللہ 9 سال کا ہے اور منسا 7 ایئرس کی ہے۔ پلان کر لیا ہم نے ان کی دونوں کی اسٹیج سرجری کا۔ آلموسٹ ہم ساری جو ہارٹ کی پیدائشی بیماریاں ہیں ان کا بچوں کا علاج مکمل طور پہ کر رہے ہیں۔ پاکستان آرمی کا اور ہمارے ملک کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے۔ پہلے ہم ان پہ کچھ ایسے پروسیجرز کریں گے جس سے وی ول بائی سم ٹائم اینڈ فائنلی وی ول گو فار کمپلیٹ کریکشن۔ انٹرنیشنل نارمز اور اسٹینڈرڈس کے بالکل عین مطابق ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ روس پاک بھارت کشیدگی کم کروانے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا روسی سفارت خانے میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان روس کو عالمی طاقت مانتا ہے، علاقائی امن و استحکام یقینی بنانے میں کلیدی کردار ہے۔
Pakistan regards Russia as an important global power, a key player in ensuring regional peace and stability. In the backdrop of raising tensions between Pakistan and India, Russia can and is playing a significant role to de-escalate the current situation. I am confident that bonds of friendship between Pakistan and Russia will continue to grow stronger. Pakistan regards Russia as an important global power, a key player in ensuring regional peace and stability. वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल साफ़ी से मुलाकात की है। कतरी वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खित्ते में अदम कशीदगी की पॉलिसी के हामी हैं। उम्मीद है सिफारती कोशिशों से कशीदगी कम होगी। वज़ीर आज़म अलसानी का कहना था कि शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत से पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में लेकर जा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्जामात और इक़दामात से खित्ते के अमन को संगीन खतरा है। गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ मजबूत करती है। भारत ने सिंतास मुआहदे पर वार किया जो हमारे लिए लाइफ लाइन है। देर पाम चाहते हैं लेकिन जारियत पर खामोश नहीं रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा से राब्ता हुआ। इसहाक डार ने अमीर खान मुत्तकी को भारत के इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात के बारे में बताया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है लेकिन खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, दोनों रहनुमाओं में इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए आला सतह राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तिजारती और सफरी सहूलत से मुतालिक इक़दामात को सराहा। इसहाक डार को दोबारा दौरा अफ़गानिस्तान की दावत भी दी। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान ने अमरीकी थिंक टैंक को भी सूरत हाल से आगाह कर दिया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर ने अमरीकी थिंक टैंक को ब्रीफिंग दी। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा दोहराया। सफ़ीर रिजवान सईद ने वाज़ेह किया, 24 करोड़ अफराद की ज़रई मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर की जाएगी। थिंक टैंक को बताया गया, भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत नहीं दिया। भारत का जंगी जुनून इलाकाई अमन खतरे में डाल रहा है। मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका, जहां इंटरनेट बंद, मीडिया और नकलो हरकत पर पाबंदियां हैं, जिससे जबर का माहौल है। खैबर पख्तूनख्वा के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली खान ने कहा है कि कोई सोच रहा है पाकिस्तान के बगैर दुनिया रहेगी तो जहन से निकाल दे। पाकिस्तान नहीं होगा तो दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं रहेगा। इसराइल भी सुन ले, मिसाइल चलाएंगे तो 2 वहां भी पहुंचेंगे। दुनिया का कॉन्सेप्ट अगर किसी के जहन में है तो वो निकाल दे कि पाकिस्तान नहीं होगा तो बाकी दुनिया बचेगी। पाकिस्तान नहीं होगा खाकम बदहन तो कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहे, कोई मुल्क नहीं रहेगा। इजराइल को भी ये मालूम होना चाहिए। शरारत की और शरंगेजियों से बाज ना आए तो अगर 4 मिसाइल इधर जाएंगे तो 2 तुम्हारी तरफ भी आ सकते हैं। हमारी जानिब बढ़े तो तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। ऐसा सबक सिखाएंगे कि माएँ बच्चों से कहेंगी पाकिस्तान से पंगा न लेना। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारर ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा, भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है, बेवकूफ भी है। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह भारत को जो मार मारी है उनकी नस्लें याद रखेंगी। नेशनल मीडिया ये कह रहा है देयर इज नो एविडेंस, हमारा दामन साफ है। फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो। अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना, रात को कहेंगी सो जाओ पाकिस्तान आ जाएगा। आर्मी चीफ की एक आवाज पर लब्बैक कहेंगे, भारत को किसी भी मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक्स सर्विसमैन कहते हैं, दिफाए वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, पूरी कौम तैयार है। अब नारा लग रहा है, तुम नहीं आते तो हम आ जाते हैं। और हमारी जब भी जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पहुँचेंगे। मेंटली वी आर रेडी। कोई भी टास्क हमें आर्मी दे, हम अभी करने को तैयार हैं। 2019 में पीएफ ने पूरी दुनिया को प्रूव कर दिया था कि वी आर मच अहेड ऑफ द इंडियन। कौम का हर फर्द रेडी है। अब तो नारा लग रहा है कि तुम नहीं आते तो बताओ हम आते हैं। पानी किसी का भी बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो कहता मैं करता हूँ, दुनिया के बच्चे पढ़ा करेंगे अपनी हिस्ट्री की किताबों में कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन इंडिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद।
अडिया जेल पिंडी में उमर अयूब, आमिर डुगर, सलमान अकम राजा की बानी पीटीआई से मुलाकात आज फिर न हो सकी। पीटीआई कारकुनों और पुलिस के दरमियान आंख मचोली चलती रही। गोरखपुर नाके पर 25 के करीब कारकुन गिरफ्तार हुए, जो बाद में रिहा कर दिए गए। उमर अयूब का एसपी नबील खोकर से तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने कहा कि उनका गिरबान पकड़कर खींचा गया, डंडे मारे गए। पुलिस गर्दी की, गुंडागर्दी की, बदमाशी की इंतहा है। मैं मेंबर कौमी असेंबली हूँ, 1.5 लाख वोट लेकर आया हूँ और ये पुलिस के एसएचओ ने, पुलिस ने ना सिर्फ मुझे मारा है, मुझे गिरबान से खींचा है, मुझे घसीटा है और मेरे साथ हमारे साथी एमएनएस को डंडे मारे। बानी ने पूछा अली अमीन गंडापुर मिलने क्यों नहीं आता। बानी ने कह दिया कि उनकी रिहाई से पहले माइंस एंड मिनरल बिल नहीं आएगा। अलीमा खानम ने कहा कि बानी ने पार्टी को किसी भी हुकूमती इजलास में शिरकत से मना कर दिया है। वाज़ेह तौर पर कहा है जब तक इमरान खान जेल से रिहा होके खुद नहीं देखेंगे कोई माइंस एंड मिनरल्स का बिल नहीं पेश होगा। जो एपीसी है उन्हें सख्ती से मना कर दिया है, पार्टी कौंसिल से भी रोक दिया है। कोई भी कहता है पॉलिसी मैं बताऊंगा, कोई उसके बगैर किसी किस्म की मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। ताकीद किया है कि अली अमीन गंडापुर को कहें कि वो क्यों नहीं मुलाकात के लिए मेरे पास आते। आज इनको कहा है कि मैंने फैसल चौधरी को पूछा तुम अंदर कैसे आए हो, तुम्हें कौन भेज रहा है। सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। आपने उनको बताया कि भारत की जानिब से आपकी सेहत पर बड़ा खौफनाक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उस पर क्या कहना था? हैरान है, पता नहीं था। मैं समझ रहा था कराची तब्दील हो गया होगा, मगर मायूसी हुई। नून लीग रहनुमा आबिद शेर अली ने हर लम्हा पुरजोश में हाथ जोड़ लिए, कहा ARY के दफ्तर आते हुए कमर का बुरा हाल हो गया। पाकिस्तान के मुआशी मरकज में पानी है, न सड़कें हैं। कराची बुलाने से पहले एयरपोर्ट से इधर तक एक सड़क बना दीजिए। मेरी कसम से कमर टूट गई, माफी दे दें, एक सड़क बना। मैं कसम से समझा शायद नया कराची बन गया, और लेकिन हमारे देहात भी ऐसे। आपके ऑफिस के सामने की सड़क देख रही, इतने इतने खड्डे, मायूसी कि इतना खूबसूरत पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है ये, ना पानी है ना सड़कें हैं। अल्लाह ही हाफिज़। 18th अमेंडमेंट के बाद उनके पास वाफिर फंड है, उनको बनाने चाहिए, कम से कम कराची जरूर बनाना चाहिए। मैं डरता है किसी इलाके का नाम गोली मार है, किसी का नाम किया मार है, क्या क्या नाम रखे हुए। आओ बच्चों पौधे लगाएं। कराची की उरूसा खलील ने तनहा शहर को सरसब्ज करने का बीड़ा उठा लिया। कहती हैं कि मौसम बेहतर करना है तो साइबान लगाना होंगे। कराची की इस पुरअज़्म बेटी की कहानी रूहा फातिमा की जुबानी। गर्मियों का तवील हो जाना और सर्दियों का ताखीर से आना, शहर में दरख्तों की कमी के बाइस माहौलियाती मसाइल बढ़ रहे हैं। हम इतने सारे साइबान बना लें, इतने सारे साइबान खड़े कर दें कि गर्मी की जो तासीर है वो कम हो जाए। बच्चों में पौधे तकसीम करके उरूसा न सिर्फ सब्जा उगाने की तरगीब दे रही है, बल्कि माहौल से मोहब्बत का जज्बा भी जगा रही है। कौन सा बच्चा जो है अपने अपने घरों में चाहता है कि हमारे इतने सारे पौधे लगे? कौन कौन अपने घरों में चाहता है? तो उसके लिए हमें पौधे लगाने पड़ेंगे। उरूसा रोजाना दर्जनों पौधे लेकर मुख्तलिफ मकामात का रुख करती हैं, लेकिन ये पौधे वो बेचती नहीं, बच्चों को तोहफे में देती हैं। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपने पौधा लगाया है, उसको टाइम पर आपने उसे पानी देना है, उसका ख्याल करना है। कराची की ये बाहिम्मत खातून उरूसा बच्चों को सिर्फ पौधे ही नहीं दे रही, बल्कि उनकी देखभाल का तरीका भी सिखा रही हैं। नन्हे हाथों में सब्ज उम्मीदें थमाकर उरूसा न सिर्फ दरख्त लगा रही हैं, बल्कि एक नई सोच भी बेदार कर रही हैं। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज कराची। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज।